Good afternoon to all of you. So in this chapter, we will discuss about the discontinuity. Last chapter we have discussed about the what is the meaning of continuity. This one is the simple meaning. Let's revise it. If a function is continuous at point if and only if left hand limit, right hand limit both are equal, uh, value of the function at point exists and both are, यानी कि condition number 2 and condition number 1 both are equal. Then we can say कि our function is continuous at point. Then what about the discontinuity? How many types of the discontinuities? What are the solutions that we will discuss in this lecture?
So discontinuity. We can say a function is discontinuous, which means there is something error related to continuity. Your graph is break. You can say there is some function is exist. Sometimes your function is not exist. So there are so many types. We can't say ki there is only one possibility. There are so many possibilities related to discontinuity. Let roll number 16, write down your name. Roll number 14, write down your name also. Jai Chauhan, write down your enrollment number and mute your mic. Okay. So change your number, roll number 14. You have to first of all write down your enrollment number, EML014, and you have to write your name. Roll number 40. So next, so discontinuity. Let's see some basic of the discontinuity. A function is said to be discontinuous at a point of its domain if it is not continuous at the point. Moreover, the point where a function is discontinuous is said to be point of discontinuity of the function. We can say sometimes your function is not continuous at a particular point. So here we'll discuss about the tends to that point, like limit x tends to c. कोई point पे आपका function जो है वो exist नहीं कर रहा. So there are so many ways, there are so many paths. So the discontinuity of a function f at a point c of its domain can arise in either the form of the following two ways. So there are two possibilities. Limit at point of the function exists but is different from the value of the f of c. And second one is limit x tends to c, f of x does not exist. Can anyone say the what's the meaning of these two sentences? कोई क्या बता सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये जो लिखा है उन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है? Sir, first point says that if हम अगर x is equal to c पे फंक्शन की वैल्यू f of c है और हम लिमिट देख रहे हैं जब x c को टेंड करता है तो अब उसकी वैल्यू अगर f of c से मैच नहीं करती है तो लिमिट x टेंडिंग टू c और f of x does not exist. Okay, good. And what's the meaning of the second point? What's the meaning of the second point is limit x tends to c, f of x does not exist. So left hand limit and right hand limit must not be coming equal, so that it must not be existing. Okay, that's the point. Or you can say, okay, your आपने जो बोला वो एकदम सही बोला है कि लेफ्ट एंड राइट बोथ आर नॉट इक्वल. Then we can say at point your function is not exist. That's the reason. So there are only two possibilities. देखो possibilities तो बहुत है, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि discontinuities किस तरह से होगी, कंटिन्यूटी पता है हमें, कंटिन्यूटी से उल्टा वो हो जाएगा discontinuity. You can say कि
देखो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हमने जो भी डिस्कस किया वो 3 पॉइंट पे किया। पहला तो हमने बोल दिया कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट है लेकिन इक्वल नहीं है। दूसरा ये बोला कि एग्जिस्ट ही नहीं है। सो कंटिन्यूटी अगर आपको पता है देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। एंड so you can see over here, 1 minute. Okay, so removable discontinuous, ध्यान से सुनना। पहले स्क्रीन पे देखो, मैं वर्ड बाय वर्ड सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। इफ लिमिट x टेंड्स टू सी f of x exists but is not equal to f of c, the meaning of the line is right hand limit and left hand limit both are same. ध्यान से सुनना, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर सेम but not is equal to f of c, but which is not is equal to f of c, then function is said to have a removable discontinuity. यानी कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी सेम but not is equal to f of c, तभी इसको बोला जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी कि दोनों तरफ से टू साइडेड लिमिट मस्ट बी सेम बट नॉट एग्जैक्ट वैल्यू एट वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट एट पॉइंट। सो उस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको बोला जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। चलो यहाँ पर तो हमने एक बात देख ली कि चलो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट इफ नॉट सेम, तो वो हो जाएगा जंप कंटिन्यूटी, यानी कि दूसरा प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगा। तो उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आज मैं आपको थोड़ा वक्त दूंगा। पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर ले डिसकंटिन्यूटी के बारे में, उसके बाद आपको लिखना है। अब ध्यान से देख सकते हैं कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये पता है कि अगर x टेंस टू 0 पे हमें फाइंड करना है और हमारे पास फंक्शन ये है sin x डिवाइड बाय x, तो सॉल्यूशन 1 ही आएगा। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन जो 1 आ रहा है वो f ऑफ 0 से मैच कर रहा है? We easily identify our solution is not same. Our solution is not same. So हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि f has a removable discontinuity at x is equal to 0. Removable discontinuity at x is equal to 0. So कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से, अगर आप यहाँ पर सपोज की ये नंबर लाइन दी है, यहाँ पर हमें दिया गया है 0, यहाँ पर दिया गया है 0, ये रहा लेफ्ट वाला पार्ट, ये रहा राइट वाला पार्ट। यहाँ पर जो है इन दोनों एरियाज में फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, एट पॉइंट वैल्यू आ रही है 0। वी कैन से बोथ आर अनइक्वल, अनइक्वल हो रहा है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट जो है वो दोनों सेम भी हो रहा है। तो उस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू पॉइंट एंड योर पॉइंट इज 0। बहुत इजी सा एग्जांपल से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि रिमूवेबल का मीनिंग क्या है। रिमूवेबल यानी कि उसको दूर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके एक मैथमेटिक्स में आता है टॉपिक। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आप भी जो आपका सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि जहां जहां पर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहा है वहां पर आप उस एरर को सॉल्व कर सकते हो, उसको बोला जाता है वहां पर सिंगुलर पॉइंट। और वहां पर भी ये सेम पॉइंट है यहाँ पर,
कॉम्प्लेक्स के अंदर आप आई थिंक सेकंड ईयर में सीखोगे, उसके अंदर भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी उस तरह से वर्ड आता है। सिंगुलरिटी का मीनिंग क्या है, अगर मैं दूसरे मैथमेटिक्स के फॉर्म में बोलूं, तो अगर आपके डिवाइड में जीरो आ रहा है, न्यूमरेटर के डिवाइड में जीरो है, तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट फॉर्म। वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैथमेटिकल टर्म बनेगा, कोई ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच बनेगा कि आप वहां पर इजी तरीके से उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो। सो उसको बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसके अंदर एक पॉइंट भी आता है कॉम्प्लेक्स में कि x माइनस ए इंटू फंक्शन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस तरह लिखूं x इंटू ए, यानी कि पॉइंट तो जीरो है यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ पर उस तरीके का सॉल्व करने की ट्राई करूं, x माइनस जीरो साइन x डिवाइड बाय x, तो x कैंसिल हो जाएगा, साइन x तो फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देर आर सो मेनी वेज, लेकिन हमें अभी वो कुछ काउंट नहीं करना है या वो कुछ देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना सीखना है कि यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग क्या है रिमूवेबल का। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, तो वहां पर फर्स्ट काइंड करके आएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, और यू कैन से जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी मतलब कि अगर आप कोई पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हो सॉल्यूशन, बट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी होगी बट इक्वल नहीं होगी। कई के बार ऐसा होता है कि राइट हैंड लिमिट जो है मॉड एक्स ही ले लो, मॉड एक्स अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो कितना होगा, नेगेटिव, और राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव। सो मॉड एक्स जो हो जाएगा उसको हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। ये मैंने एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं अगर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम सिमिलरिटी नहीं आ रही, तो वो भी एक तरीके की डिसकंटिन्यूटी ही कंसीडर की जाती है, और उस कंटिन्यूटी का नाम है जंप डिसकंटिन्यूटी, और यू कैन से फर्स्ट काइंड। अगर आपको चेक करना है योर वेदर योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, and if you tried and you have solved like left hand limit is 1 and right hand limit is -1, then you can directly write your form is discontinuity of the first kind, or you can say which one, that one is what, jump discontinuity. अगर कोई ये बोले कि अगर हम इसके अंदर और इसको डीपली देखें, सो फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट कब बोला जाता है, जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू से मैच नहीं होती। जब लेफ्ट साइड की जो वैल्यू जो है, लेफ्ट साइड की वैल्यू वो फंक्शन से मैच नहीं होती। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड की जो लिमिट है वो भी फंक्शन की वैल्यू से सिमिलर नहीं होगी। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट and discontinuity of the first kind from the right. So there are jump continuity and there are some 2 point also. So now we will see, ये एक एग्जांपल दिया है आपको, अब आपको पढ़ना आना चाहिए। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू 1 कब है, जब x 0 से कम है, यानी कि ये वाला पार्ट, x की वैल्यू मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। चलो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x जो है वो 0 से कम। यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी -1, जब आपका x जो है वो 0 से
बड़ा होगा। सो राइट हैंड साइड पे -1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, देन वी कैन से कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर अनइक्वल. So you have to write simple f has a discontinuity of the first kind, और आपको लिखना होगा जंप डिसकंटिन्यूटी. ये जब भी आपकी एग्जाम होगी तब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी कंटिन्यूटी बन रही. तो उसके लिए आपको सब चीज पता होनी चाहिए कि कब फर्स्ट काइंड होगा, कब वहां पर जैसे हमने आगे डिस्कस किया उस तरह से जंप डिसकंटिन्यूटी वाला टॉपिक किया. ये अभी हम डिस्कस करा तो ये हो गया हमारा रिमूवेबल वाला हो गया. कब हमारा सेकंड काइंड होगा, सेकंड काइंड वाला भी हम देखते हैं. सो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कब हमारी डिसकंटिन्यूटी कौन सा टाइप की है. अगर हम ये बोले कि रिमूवेबल हो गया उसके बाद फर्स्ट काइंड यानी कि जंप हो गया, अब कोई तरीका है डिसकंटिन्यूटी का? तो हाँ, तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलो या फिर डिसकंटिन्यूटी टाइप 3 बोलो. A function f is said to have a discontinuity of the second kind at x is equal to c if neither right limit nor left limit exist. Neither right limit nor left limit exist. और उसी सेकंड काइंड को लेफ्ट कब बोला जाएगा? जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट ना हो. और राइट हैंड साइड तब बोला जाएगा जब राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट ना हो. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस पे डिपेंड हो रहा है. अगर हम यहाँ पर फर्दर डिस्कशन करें, what is the meaning of function f is said to have a discontinuity of a second kind? मुझे यहाँ पर कोई स्टूडेंट अनम्यूट करके कोई एग्जाम्पल अगर सोच सके तो मैं आपको 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ. आपको मुझे एग्जाम्पल बताओ. चलो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे कोई पॉइंट पे. ठीक है, मैं आपको बाद में टाइम देता हूँ. आप सोचना कि यहाँ पर लिखा है कि नाइदर राइट लिमिट नॉर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, आपका वक्त काफी लगेगा इसको समझने में. अब सिर्फ दो ही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. देखो उसके बाद सक्सेसिव वगैरह पढ़ेंगे. आज मेरे ख्याल से ये ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ये पूरा जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा डिसकंटिन्यूटी वाला, और लिखने के लिए भी आपको वक्त चाहिए. सो फंक्शन को मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कब बोलते हैं? जब if f has a discontinuity of the second kind on one side of x is equal to c, and on the other side discontinuity of the first kind or may be continuous. यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑन द वन साइड, यानी कि राइट हैंड साइड जो है, एक साइड समझ लो राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा, एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड. देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड इज व्हाट? दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर डिफाइन हो रहा है तो राइट साइड पे एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, और राइट साइड पे अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी कि एक में एग्जिस्ट होगा, एक में एग्जिस्ट नहीं होगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट हो रहा है 2i वैल्यू, तो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए नॉन एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट.
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 आ रहा है सॉल्यूशन, तो राइट हैंड साइड पे नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, क्योंकि दोनों कंटिन्यूटी जो है एक दूसरे से मिल रही है यहाँ पर, इसलिए उसको बोला जाए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। और फंक्शन को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब बोलेंगे? एट कोई पॉइंट पे, कि इफ वन और मोर ऑफ द फंक्शनल लिमिट इज प्लस इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट, it is easy to verify that f is discontinuous at x is equal to c and is unbounded in every neighborhood of c, then f has infinite discontinuity x at x is equal to c। अगर आपके पास एक जगह नेगेटिव इनफाइनाइट है, एक जगह पॉजिटिव इनफाइनाइट है, तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कोई पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, कोई पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कि आपका सॉल्यूशन अनडिफाइंड है। उसका इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? कि इसका सॉल्यूशन जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। सो ये रही इनफाइनाइट। ये सिर्फ आपको एक पर्पस दिया गया है, आपको सिर्फ आपको नॉलेज मिले इसलिए ये दोनों टॉपिक रखे गए हैं। हमें फोकस करना है इन सब पे। सो मेरे ख्याल से ये लिखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ से आप शुरू कर दो, हर एक वर्ड जो है उसको पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको लिखो, भले ही थोड़ा टाइम जाए। आज मैंने थोड़ा जल्दी, इसलिए आज मैं कम पोर्शन में इसलिए चला रहा हूँ ताकि काफी सारे बच्चों का जो कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। डिसकंटिन्यूटी क्या है वो उसको अच्छी तरह से समझ आए, इसलिए आज कम पोर्शन हमने चलाया। वर्ड टू वर्ड पे फोकस करो, डिसकंटिन्यूटी क्या है, लिमिट क्या है, अच्छी तरह से बुक बनाओ। पूरा का पूरा ये पेज है अभी लिखो, उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में लिखना कि आप काफी लोगों ने डन कर दिया, सर डन सर वगैरह लिख देना। और ये डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो है ये पूरा का पूरा पूरा जो चैप्टर है वहां पर चलेगा। आज ट्यूटोरियल भी है बैच, मेरे ख्याल से आज कौन सा फ्राइडे है, तो आई थिंक बैच ए का होगा ट्यूटोरियल। तो बैच ए का जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आज 8 क्वेश्चन दूंगा, किस तरह से लिखना है वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो आज बैच ए का ट्यूटोरियल होगा, मंडे होगा बैच बी का ट्यूटोरियल। सो जल्दी से लिखो डिसकंटिन्यूटी।
અહીંથી નું 3 વાગે છૂટો થાય પણ તું અહીંથી છૂટો નીકળ્યો. Make sure your mic is not unmute. जो जिसका भी माइक मुझे यहाँ पर अनम्यूट दिखा या फिर कोई बातचीत वगैरह हुआ, तो मैंने अभी एक जो बोल रहा था बलर करके कोई था, उसको मैंने अभी रिमूव कर दिया, ठीक है। एक बार रिमूव हो गए तो वापस ज्वाइन नहीं हो सकते, उसको एब्सेंट मिलेगी। तो मेक श्योर कि अगर आप घर पे हो, अगर नहीं पढ़ना है तो म्यूट करके बैठे रहो। मुझे कोई इतना डिस्कशन नहीं चाहिए और कोई आवाज़ आनी नहीं चाहिए। उसका मैंने नंबर भी नोट कर लिया है। सो ध्यान रखना कि आपका माइक जो है वो सिर्फ कोई प्रॉब्लम के लिए ही आप अनम्यूट करें। वैसे तो अनम्यूट करना ही नहीं है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है या फिर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल समबडी कि भाई क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, किस तरह से वगैरह। फिर वो एब्सेंट मिलेगी, अभी एक को मिल चुकी है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अरे रिकॉर्ड हो रहा है। इफ अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी कुछ हुआ तो मैं ऑफिशियली कंप्लेन कर सकूं। एग्जाम्पल्स तो बहुत है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी के आप भी बना सकते हो कोई भी एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको करना क्या है। आप सोचो, मैं अभी डेफिनेशन जब भी आए तभी हम डिस्कस करेंगे वो, क्योंकि काफी लोगों के वो लिखना बाकी है अभी रिमूवल वाला। उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकता है। अभी आप कॉलेज में तो आप भी बना सकते हो एग्जाम्पल, सब बना सकते हो, ठीक है। गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगा, वो आज बैच ए वालों को पता चल जाएगा कि काफी सारी चीजें जो है वो क्लास में नहीं पता होगी, क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको ट्यूटोरियल में जरूर दिया जाएगा। आई थिंक सब लोगों ने लिख लिया है। राइट डाउन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूरा लिखो।
Okay, so most of the students have written the theory. So now you can leave. We will discuss next lecture with example of mixed discontinuity, infinite discontinuity and many more. So जो बैच ए के अंदर जो स्टूडेंट है, एक काम करो, सभी लोग लीव ही हो जाओ। सभी लोग लीव हो जाओ। उसके बाद कितने बजे? 147, 155 को 5 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ मैं आप लोग को, 5 से 7 मिनट का। 155 को बैच ए को ज्वाइन होना है। ओके, टुडे इज फॉर बैच ए। बैच ए को 155 को ज्वाइन होना है। सो नाउ यू ऑल कैन लीव।